Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter income from other sources under Unit 2 under the subject income tax 2 for BCom second year semester 4 students. Let us discuss the problem. Page number B20, problem number 6. Here is the question. Mr. Durga Prasad submitted the following particulars of his investments during the previous year relevant to current assessment year. Rupees 18,000 10% preference shares of a limited company, rupees 2 lakhs 6% Government of India loan 2021, rupees 25,000 19% redeemable debentures of RR Company Limited, rupees 60,000 17% tax-free Mysore government loan, rupees 10,000 15% national savings certificate, rupees 1 lakh 15% debentures of Sony Company Limited purchased on 1st January 2019 with a debt finance at the rate 9%, rupees 1 lakh 12% less tax bonds of Gujarat government bonds. Net interest on X Company Limited debentures received is 21,000. On 1st October 2018, he bought rupees 70,000 18% debentures of Y Company Limited in Bombay Stock Exchange by raising a loan of rupees 50,000 at 15% and the balance amount was adjusted from his past savings. मतलब ये जो 70,000 के जो debentures Y Company में खरीद रहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, इसके लिए 50,000 का लोन लिए हुए है जिसपे 15% इंटरेस्ट पे करना है और बैलेंस जो 20,000 है वो पुराने अपने सेविंग्स में से इन्वेस्ट करे सो है. बट द कंपनी हैज़ नॉट येट पेड द इंटरेस्ट टू इट्स डिबेंचर होल्डर. मतलब ये जो 70,000 के जो डिबेंचर्स पे खरीदे जिसपे 18% इंटरेस्ट मिलना है, कंपनी अभी डिबेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट पे नहीं करे. द बैंकर चार्जेस 2% एज कलेक्शन चार्जेस ऑन इंटरेस्ट कलेक्टेड. Compute the income from interest on securities assuming that the interest is payable on 30th September and 31st March of every year. Let us solve the problem. Here is the solution. We will be writing the heading as computation of Mr. Durga Prasad's income from interest on securities under the head income from other sources for the assessment year 2019-2020. And the format is particulars amount rupees. So first his first investment is rupees 18,000 10% preference shares of a limited company. Here is the working notes. डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज एन एग्जेम्प्टेड इनकम. तो जो भी प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को वो जो है ना एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है. सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस इंटरेस्ट. नेक्स्ट हिज सेकंड इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 2 lakhs 6% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन 2021. तो ये जो है ना लेस टैक्स सिक्योरिटी है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी है. सो फॉर लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल बी कैलकुलेटिंग ग्रॉस इंटरेस्ट एज ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100. तो आप यहाँ पे लिखेंगे gross interest equals to face value into rate divided by 100. तो यहाँ पे ग्रॉस फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू इज 2 lakhs rupees and the rate of interest is 6%. So 2 lakhs into 6 divided by 100, it works out to be 12,000 rupees, which will be recorded here as rupees 2 lakhs 6% government of India loan 2021 12,000. Next, the next investment is rupees 25,000 19% redeemable debentures of RR Company Limited. तो ये लेस टैक्स सिक्योरिटी है और उसमें कमर्शियल अनलिस्टेड है. सो अब इसके लिए भी ग्रॉस इंटरेस्ट सेम वही फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100. सो हियर इज द वर्किंग नोट्स. डिबेंचर्स ऑफ RR कंपनी लिमिटेड ये लेस टैक्स सिक्योरिटीज है और कमर्शियल सिक्योरिटीज है और उसमें भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है. तो जिसके लिए यू विल बी अप्लाइंग द सेम फार्मूला, ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100. So here the face value is 25,000 and the rate of interest is 19%. So 25,000 into 19 by 100, which works out to be 4,750, which will be recorded here as 25,000 19% redeemable debentures of RR Company Limited 4,750. Next, after 25,000 he has an investment of rupees 60,000 17% tax free Mysore government loan. So ये tax free security है और government security है. For tax free government securities, gross interest will be calculated by applying the same formula, फेस वैल्यू इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100. इसका कैलकुलेशन देखिए 60,000 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 100. यहाँ भी आप सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे. टैक्स फ्री मैसूर गवर्नमेंट, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये. सो ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100. फेस वैल्यू 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 17%. सो 60,000 इंटू 17 बाई 100, विच वर्क्स आउट टू बी 10,200, विच विल बी रिकॉर्डेड हियर एज 60,000 17% टैक्स फ्री मैसूर गवर्नमेंट लोन 10,200. नेक्स्ट, after Mysore government loan, next investment is rupees 10,000 15% on national saving certificates. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पे जो इंटरेस्ट मिल रहा, दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. तो उसके लिए वर्किंग नोट लिखेंगे आप. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज टू बी शोन एज
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेपरेटली, तो यही ग्रॉस इंटरेस्ट में इंक्लूड करने के बजाय इसको आप क्या करें, सेपरेटली बता रहे। नेक्स्ट वी हैव rupees 1,15% debentures of Sony Company Limited purchased on 1st January 2019 with a debt finance at the rate 9%। तो ये जो 1 लाख है इस पे 15% मिलना है, तो ये लेस टैक्स सिक्योरिटीज है। लेस टैक्स में फिर कमर्शियल सिक्योरिटीज है, कमर्शियल में अनलिस्टेड है। सो लेस टैक्स कमर्शियल अनलिस्टेड के लिए विल बी अप्लाइंग द सेम फार्मूला, ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 1 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100। बट क्योंकि ये सिक्योरिटीज 1st जान में खरीदे हुए मतलब सेकंड ड्यू डेट पे आ रहे, सो द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 6 months। So here is the calculation, debentures of Sony Company Limited, less tax, commercial, unlisted, and the calculation will be only for 6 months. So gross interest equals to 1 lakh into 15 divided by 100, 15%, that is 15 divided by 100 into 6 divided by 12, which works out to be 7,500। तो अब यहाँ पे ग्रॉस इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे आप, ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100। Next, so the answer is 7,500, which will be recorded here as 1,15% debentures of Sony Company Limited, 7,500. Next, after Sony Company Limited, he has an investment of rupees 1,12% less tax bonds of Gujarat government bonds. तो ये less tax government securities है, for which gross interest will be calculated as face value 1 lakh into rate of interest 12 by 100. So 1 lakh into 12 by 100. तो अब इस तरफ उसका वर्किंग नोट्स है, देखिए गुजरात गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लेस टैक्स गवर्नमेंट है, ये लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो द ग्रॉस इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फार्मूला, ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 1 लाख इनटू 12 by 100, which is 12,000, which will be recorded here as 1,12% Gujarat government bonds 12,000। Next, after Gujarat government bonds, he has received net interest from X Company Limited debentures, which is 21,000। तो X Company Limited मतलब ये लेस टैक्स कमर्शियल है। लेस टैक्स कमर्शियल अनलिस्टेड में जो अपने को इंटरेस्ट कंसिडर करना है वो ग्रॉस इंटरेस्ट कंसिडर करना है, बट द एसएससी हैज रिसीव्ड नेट इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 21,000 विच शुड बी ग्रॉस्ड अप। तो उसको ग्रॉसिंग कैसा करेंगे आप, नेट इंटरेस्ट इंटू 100 by 90। तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे है, देखिए एक्स कंपनी लिमिटेड डिबेंचर्स लेस टैक्स में है, ये कमर्शियल है, फिर लिस्टेड है, तो जो इंटरेस्ट आया वो नेट इंटरेस्ट है। दिस हैज बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। सो अब उसको ग्रॉस इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है। कैसा कन्वर्ट करेंगे, ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल्स टू नेट इंटरेस्ट इंटू 100 by 90। सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 21,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, इट वर्क्स आउट टू बी 23,333, विच विल बी रिकॉर्डेड हियर एज ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन एक्स कंपनी लिमिटेड डिबेंचर्स 23,333। नेक्स्ट, on 1st October 2018, he bought rupees 70,000 18% debentures of Y Company Limited in Bombay Stock Exchange। तो एक 70,000 के डिबेंचर्स खरीदे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। तब उसके लिए देखिए डिबेंचर्स ऑफ Y Company Limited, ये लेस टैक्स है, कमर्शियल है और अनलिस्टेड है, फॉर विच द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट इज सेम, ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 70,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100। बट एज इट हैज बीन परचेज्ड on 1st October, the interest will be calculated only for 6 months. So 70,000 into 18 by 100 into 6 divided by 12, which works out to be 6,300, which will be recorded here as 70,000 18% debentures of Y Company Limited 6,300. Now adding all the gross interest values, 12,000 plus 4,750 plus 10,200 plus 7,500 plus 12,000 plus 23,333 plus 6,300. So gross income from interest on securities is 76,083 rupees. Now we have to allow deductions under section 57. One is collection charges and another one is interest paid on loan taken. तो अब यहाँ पे जो एसएससी जो लोन ले रहे वो कौन से लोन ले रहे, देखिए एक ये 70,000 के जो डिबेंचर्स वाई कंपनी में खरीदे उसके लिए 50,000 लोन ले रहे एट 15%। और एक चीज़ ये जो सोनी कंपनी लिमिटेड के जो डिबेंचर्स परचेस करे थे वो डेट फाइनेंस एट द रेट 9% लिए सो थे। तो उसके लिए क्या वर्किंग नोट्स है, देखिए फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेस सोनी कंपनी डिबेंचर्स का कैलकुलेट करेंगे। वो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक सिर्फ 3 मंथ्स के लिए है। सो 1 लाख रुपीज़ के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 लाख इंटू 9 by 100 फॉर 3 मंथ्स। सो 1 लाख इंटू 9 by 100 इंटू 3 by 12 विच वर्क्स आउट टू बी 2,250। ये सोनी कंपनी डिबेंचर्स का इंटरेस्ट जो पे करे 3 मंथ्स का ये था। नेक्स्ट,
अक्टूबर 1 में जो वाई कंपनी में जो डिबेंचर्स खरीदे 70,000 के, जिसके लिए 50,000 जो है ना 15% पे बारो करे थे और बाकी के जो 20,000 है वो अपने पुराने सेविंग्स में से इन्वेस्ट करे थे। इस पे कितना इंटरेस्ट पे करे 15%। सो द कैलकुलेशन इज 50,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12 विच इज 3,750। सो द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन सिक्योरिटीज इज 2,250 for Sony company debentures and 3,750 for Y company debentures. So the total interest paid is 2,250 plus 3,750, which is 3 plus 2 5, 5 plus 1,000 6,000. So total interest paid is 6,000. Now you are also required to you are also instructed in the question that the banker charges 2% as collection charges on interest collected. तो यहाँ पे जो gross interest आ रहा वो कितना आ रहा 76,083 रुपीज़ आ रहा। बट इसमें से ये जो 70,000 18% डिबेंचर्स ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड खरीदे, यहाँ पे ये पॉइंट ये भी स्पेसिफाई करा हुआ है, द कंपनी हैज़ नॉट येट पेड द इंटरेस्ट टू इट्स डिबेंचर होल्डर्स। मतलब ये जो इंटरेस्ट है 6,300 अभी कंपनी से डिबेंचर होल्डर्स को नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, फॉर कैलकुलेटिंग कलेक्शन चार्जेस वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग दिस अमाउंट ऑफ 6,300 फ्रॉम 76,083 रुपीज़। तो अब आपको जो 2% कलेक्शन चार्जेस कैलकुलेट करना है वो 76,083 में से ये जो 6,300 डिबेंचर होल्डर्स को जो कंपनी से इंटरेस्ट अभी नहीं मिला वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक चार्जेस 2% एज कलेक्शन चार्जेस ऑन इंटरेस्ट कलेक्टेड बोला, क्योंकि अभी ये 6,300 का इंटरेस्ट अभी रिसीव नहीं करे, इसीलिए हम इसको ये ग्रॉस इंटरेस्ट 76,083 में से माइनस कर दे रहे। सो 76,083 में से 6,300 माइनस करने के बाद क्या पैसे बच रहे 69,783, जिसपे आप 2% कलेक्शन चार्जेस कैलकुलेट कर रहे विच इज 1,396। सो कलेक्शन चार्जेस आर टेकन एज 1,396 एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन। तो एक सोनी कंपनी लिमिटेड के लिए जो इंटरेस्ट पे करे वो 2,250 है और ये वाई कंपनी लिमिटेड के लिए जो इंटरेस्ट पे करे वो 3,750 है। सो टोटल इंटरेस्ट पेड इज 6,000। सो एडिंग 6,000 and 1,396 द टोटल वैल्यू इज 7,396। Now the gross income from interest on securities is 76,083 rupees and deductions under section 57 is 7,396. So subtracting 7,396 from 76,083 rupees, the answer is 68,687, which is income from interest on securities. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts, and if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.